زبیر رضوی 1960 کے آس پاس اردو شاعری کے افق پر نمودار ہوئے۔ یہ اس کہکشاں کا حصہ ہیں جس نے تجربوں اور اظہار و بیان کے نئے چراغ روشن کیے۔ زبیر رضوی بھی زندگی کے نئے طوفانوں میں محبوب کا ہاتھ اور تہذیبی قدروں کا دامن چھوٹ جانے کے بھیانک تجربے میں شریک رہے۔ انہوں نے بھی زندگی اور دنیا کے بگڑتے چہرے کو شاعری کے ذریعے سنوارنے اور خوبصورت بنانے کی جد و جہد مسلسل جاری رکھی۔ بھٹک جاتی ہیں تم سے دور چہروں کے تعاقب میں، جو تم چاہو میری آنکھوں پہ اپنی انگلیاں رکھ دو۔ اب ہم آواز دیتے ہیں جناب زبیر رضوی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب زبیر رضوی۔ تو میں ایک نظم آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تازہ نظم ہے میری۔ میرا جی چاہا کہ میرا قاری تو پڑھتا ہی رہتا ہے میری نظموں کو، میں نے سنا کہ سامع سے بھی مخاطب ہو لیا جائے۔ آج کی صورتحال کے تناظر میں آپ سنیں، میں ایک آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کروں گا، آپ جیسے حضرات سے، کہ صرف سن لیجئے، چونکہ نظم آپ سے قربتیں چاہتی ہے۔ یہ آپ کی سماعت سے امیجیٹ دوستی نہیں کرتی، فوری۔ نظم ہمیشہ آپ سے بہت دیر تک قربتیں چاہتی ہے۔ صرف سن لیجئے گا اب آپ اس کو، داد واد کی ویسی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نظم سنا رہا ہوں آپ کو کہ ہم کہاں آ گئے، ہم کہاں آ گئے سارے بے سمت ہیں، ہم کہاں آ گئے سارے بے سمت ہیں، قافلے کارواں سارپاں، ایک سیلاب آدم ملے 400، ایک تگو تازے کارے جہاں، آسماں سے پرے سیر سیارہ گاں، اور زمیں دوز پہنائیوں میں نگاہوں کی حیرانیاں۔ ہم کہاں آ گئے سارے بے سمت ہیں، قافلے کارواں سارواں، ایک سیلاب آدم ملے 400، ایک تگو تازے کارے جہاں، آسماں سے پرے سیر سیارہ گاں، اور زمیں دوز پہنائیوں میں نگاہوں کی حیرانیاں، اب کہیں بھی نہیں ماتم مرگ بیچارہ کا، اب کہیں بھی نہیں اب کہیں بھی نہیں ماتم مرگ بیچارہ گاں، ہر عدالت میں انصاف کی عرضیاں، ہر عدالت میں انصاف کی عرضیاں، باطلوں کی طرفداریاں، بانوئے بے ردا کوئی پرسہ نہیں، بانوئے بے ردا کوئی پرسہ نہیں، گریائے طفل بیچارہ گاں کوئی سنتا نہیں۔ خواب بیمار آنکھوں میں مرتے ہوئے، ہم کہاں آ گئے سارے بے سمت ہیں، قافلے کارواں۔ نظم ختم ہو رہی ہے کہ خواب بیمار آنکھوں میں مرتے ہوئے، خودکشی 400 بین کرتی ہوئی، عرض جنت نشاں معبد نوریاں، بستی عاشقاں، مقتل حرف و صوت و صدا بن گئی، اور لہو رنگ گنگ و جمن کر گئی، مقتل شام تشنا لبا، عرض جنت نشاں۔ ایک نظم آپ کو نثری سنا رہا ہوں، مجھے یہ نظم اچھی لگتی ہے۔ میں نے میرے شعری مجموعہ بالکل خالص نثری نظموں کا بھی آیا تھا۔ بہرحال وہ قاری، بہرحال جو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ بچے اور بدبو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ بچوں، استادوں اور سرپرستوں نے، بچوں، استادوں اور سرپرستوں نے اسکولوں کے سامنے برسوں پرانے بدبو بھرے کوڑے دان کو
हटाने का मुतालबा छोड़ दिया है। बच्चों, उस्तादों और सरपरस्तों ने स्कूलों के सामने बरसों पुराने बदबू भरे कूड़ेदानों को हटाने का मुतालबा छोड़ दिया है। अब बच्चों के नथनों से गुजरकर उनकी सांसों का हिस्सा बनने वाली बदबू सरकारी भोजन के बाद मुफ्त मिलने वाली बर्फी बन गई है। बच्चों, उस्तादों और सरपरस्तों ने स्कूलों के सामने बरसों पुराने बदबू भरे कूड़ेदानों को हटाने का मुतालबा छोड़ दिया है। अब बच्चों के नथनों से गुजरकर उनकी सांसों का हिस्सा बनने वाली बदबू सरकारी भोजन के बाद मुफ्त मिलने वाली बर्फी बन गई है। किताबों को पढ़ते हुए यही बदबू किताबों को पढ़ते हुए यही बदबू चॉकलेट की तरह चूसी जाने लगी है। बच्चे दिन भर सूंघी जाने वाली बदबू किताबों में ठूसकर अपने घरों के आसपास वाले कूड़ेदानों की हथेली पर रख देते हैं और रात की चादर तान कर बदबू भरे ख्वाब देखने लगते हैं। आप दिल्ली शहर में रहते हैं, एक दो नज़्में दिल्ली शहर के बारे में। बड़े शहर मेरा मौजूद भी है, दिल्ली को मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है ये शहर। उससे पहले एक छोटी सी रोमानी नज़्म आपको सुनाता हूँ। थोड़ा सा आपकी कैफियत जो है उसको थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करना नहीं चाहता, थोड़े फ्लैशेस दे रहा हूँ आपको से कि तुम किस सोच में डूब गई हो, तुम किस सोच में डूब गई हो, हाथ का पत्थर पानी के सीने पर मारो, चोट तो पानी की आएगी। बहुत छोटी सी नज़्म है, बहुत मुख्तसर, लेकिन नज़्म उस वक्त ज़ाया हो जाती है जब आखिरी मिसरा आपकी गिरफ्त से निकल जाए कि तुम किस सोच में डूब गई हो, हाथ का पत्थर पानी के सीने पर मारो, चोट तो पानी की आएगी। पानी चोट की ताब न लाकर मौजों की सूरत में बहता साहिल साहिल सर पटकेगा, फिर खुद ही असली हालत पर आ जाएगा। तुम किस सोच में डूब गई हो, हाथ का पत्थर पानी के सीने पर मारो, मैं पानी हूँ। हाथ का पत्थर पानी के सीने पर मारो, मैं पानी हूँ। एक नज़्म की फरमाइश है, मैंने बहुत पढ़ी है ये नज़्म, आप भी सुन लीजिए। बच्चों पर मैंने एक नज़्म सुनाई थी, बच्चे मेरा सब्जेक्ट भी हैं, अब बहुत सी नज़्म मैंने लिखी हैं, उसमें एक नज़्म ये भी सुन लीजिए कि सुबहदम जब भी देखा है मैंने कभी नन्हे बच्चों को स्कूल जाते हुए, उंगलियां एक की एक पकड़े हुए, अपने बस्तों को गर्दन में डाले हुए। सुबहदम जब भी देखा है मैंने उन्हें, सुबहदम जब भी देखा है मैंने उन्हें, ममता उनकी राहों में साया करे, उनके कदमों में खुशबू बिछाया करे, और देवता उनके हाथों को चूमा करे, मन ही मन उनकी बातों पे झूमा करे। सुबहदम जब भी देखा है मैंने उन्हें, मेरा जी चाहता है कि मैं दौड़कर एक नन्हे की उंगली पकड़कर कहूँ, मुझको भी अपने स्कूल लेते चलो, ताकि ये तशनई आरज़ू ज़िंदगी फिर से आगाज़े शौक़े सफ़र कर सके, फिर से आगाज़े शौक़े सफ़र कर सके। यहाँ शाहिद मेहदी साहब, बेगम शाहिद मेहदी भी बैठी हुई हैं। एक मेरी नज़्म है, मैंने पिछले अमेरिका में कुछ मुशायरे हो रहे थे तो मैंने भी शिरकत कर ली। मुझे शरारत भी कभी कभी सूझती है, थोड़ा सा ये जो मुशायरे का मकबूल किस्म की फ़ज़ा है उसको तोड़ने के लिए। तो मैंने एक नज़्म सुनाई थी, तो मुझे जब मैं होटल में आया तो मेरे साथ पाकिस्तान के शायर भी थे, बहुत बड़े, नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारा टेलीफोन आया है। तो मैंने टेलीफोन अटेंड किया तो उस पर किसी की आवाज़ थी कि अगर ये नज़्म तुमने फिर सुनाई
तुम वापस हिंदुस्तान नहीं जा सकते। मैं हर मुशायरे में वो नज़्म सुनाई, आप सुन लीजिए उस नज़्म। आपकी नज़र है कि सुनो, कल तुम्हें हमने मद्रास कैफे में औबाश लोगों के हमराह देखा। सुनो, कल तुम्हें हमने मद्रास कैफे में औबाश लोगों के हमराह देखा। वो सब लड़कियां बदचलन थी जिन्हें तुम सलीके से काफ़ी के कप दे रहे थे। बहुत फहश और मुब्तज़िल नाच था वो कि जिसके रिकॉर्डों की घटिया धुनों पर थरकती मचलती हुई लड़कियों ने तुम्हें अपनी बाहों की जन्नत में रखा। बहुत दुख हुआ। ख़ानदानी शराफत, बुजुर्गों की बाकी सजीली वजाहत को तुमने सरेआम क्यों रौंद डाला। सलीका जो होता तुम्हें लफ्ज़ों का, तो अपने बुजुर्गों के मानंद तुम भी घरों में कनीज़ों से पहलू सजाते और पे इशरते दिल हवेली में हर शब कभी रक्स होता कभी जाम चलते। और सलीका जो होता तुम्हें लफ्ज़ों का, तो यूं ख़ानदानी शराफत वजाहत न मिट्टी में मिलती न बदनाम होती। शुक्रिया। आप गज़ल सुन लीजिए। ये है, मुझे गज़ल ये पसंद है, मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। मतलब सुनिए। मैंने कब बरक़े तपा मौजे बला मांगी थी। मैंने कब बरक़े तपा मौजे बला मांगी थी। गुनगुनाती हुई सावन की घटा मांगी थी। मैंने कब बरक़े तपा मौजे बला मांगी थी। गुनगुनाती हुई सावन की घटा मांगी थी। और दश्तो सहरा से गुज़रती हुई तन्हाई ने, दश्तो सहरा से गुज़रती हुई तन्हाई ने रास्ते भर के लिए उसकी सदा मांगी थी। दश्तो सहरा से गुज़रती हुई तन्हाई ने रास्ते भर के लिए उसकी सदा मांगी थी। और वो था दुश्मन मेरा हारा तो बहुत ज़ख्मी था। वो था दुश्मन मेरा हारा तो बहुत ज़ख्मी था। मैंने ही उसके लिए शाखे हिना मांगी थी। वो था दुश्मन मेरा हारा तो बहुत ज़ख्मी था। मैंने ही उसके लिए शाखे हिना मांगी थी। और शेर सुनिए कि साहिबा धूप का क्यों सर पे मेरे तान दिया। साहिबा धूप का क्यों सर पे मेरे तान दिया। ऐ फलक मैंने तो बादल की रिदा मांगी थी। साहिबा धूप का क्यों सर पे मेरे तान दिया। ऐ फलक मैंने तो बादल की रिदा मांगी थी। और शाख से टूटते पत्तों की तरह मैंने भी, शाख से टूटते पत्तों की तरह मैंने भी मौसमे गुल तेरे आने की दुआ मांगी थी। शाख से टूटते पत्तों की तरह मैंने भी मौसमे गुल तेरे आने की दुआ मांगी थी। और सुनिएगा कि मेरी और यानी को काफ़ी थी तेरी परछाई। मेरी और यानी को काफ़ी थी तेरी परछाई। मैंने कब चांद सितारों की क़बा मांगी थी। मेरी और यानी को काफ़ी थी तेरी परछाई। मैंने कब चांद सितारों की क़बा मांगी थी। शहर दिल्ली से हमें और तो क्या लेना था। शहर दिल्ली से हमें और तो क्या लेना था। अपनी सांसों के लिए ताज़ा हवा मांगी थी। शहर दिल्ली से हमें और तो क्या लेना था। अपनी सांसों के लिए ताज़ा हवा मांगी थी। एक और गज़ल सुन लीजिए कि ज़िंदगी ऐसे घरों से तो खंडर अच्छे थे।
जिंदगी ऐसे घरों से तो खंडर अच्छे थे जिनकी दीवार ही अच्छी थी न दर अच्छे थे। जिंदगी ऐसे घरों से तो खंडर अच्छे थे जिनकी दीवार ही अच्छी थी न दर अच्छे थे, और उनकी जन्नत में रहे हम तो ये एहसास हुआ, उनकी जन्नत में रहे हम तो ये एहसास हुआ, अपने वीरानों में हम खाक बसर अच्छे थे। उनकी जन्नत में रहे हम तो ये एहसास हुआ, अपने वीरानों में हम खाक बसर अच्छे थे, और बंद थी हम पे वही राहे गुलिस्तां के जहां, बंद थी हम पे वही राहे गुलिस्तां के जहां, साया करते हुए दो रोया शजर अच्छे थे। बंद थी हम पे वही राहे गुलिस्तां के जहां, साया करते हुए दो रोया शजर अच्छे थे, और उम्र की अंधी गुफाओं का सफ़र लंबा था। उम्र की अंधी गुफाओं का सफ़र लंबा था, वो तो कहिए कि रफ़ीक़ान सफ़र अच्छे थे। उम्र की अंधी गुफाओं का सफ़र लंबा था, वो तो कहिए कि रफ़ीक़ान सफ़र अच्छे थे, और सैरे दुनिया से जो लौटे तो ये जाना हमने, शहरे दुनिया से जो लौटे तो ये जाना हमने, शहर गालिब तेरे खूबान नज़र अच्छे थे, शहर गालिब तेरे खूबान नज़र अच्छे थे। शुक्रिया।